السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج پاکستان کی آواز کے ساتھ میں ہوں لاہور سے آپ کا ہوسٹ سعید بلوچ۔ ناظرین، اس وقت لاہور سمیت پورے صوبے کے عوام مہنگائی کی زد میں ہیں۔ ہر طرف مہنگائی کا شور ہی شور ہے اور مہنگائی کے خلاف عوام کا سخت رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے۔ مہنگائی جیسے اس اہم مسئلے کو ایڈریس کرنا اس ایوان کے منتخب نمائندوں کا کام ہے، جو لوگوں کے ووٹ لے کر اس معزز ایوان میں آتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے ایوان کے یہ جو منتخب اراکین ہیں، کیا وہ مہنگائی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ادراک رکھتے ہیں؟ کیا انہیں مہنگائی کا احساس ہے؟ کیا انہیں لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی معلومات ہیں؟ ان سب باتوں کا ہم جائزہ لیں گے اراکین اسمبلی کی زبانی، اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مہنگائی کے حوالے سے کیا وہ ان کے ویوز ہیں اور وہ ایوان میں عوام کی جو آواز ہے اسے کس طرح سے اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ بتائیے گا کہ مہنگائی کا ہر طرف شور مچا ہوا ہے، لاہور ہی نہیں بلکہ پورا صوبہ بلکہ پورے پاکستان میں ایک ہی بات ہو رہی ہے، مہنگائی 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 مہنگائی۔ تو آپ رکن اسمبلی کی حیثیت سے اور ایک جماعت کی لیڈر کی حیثیت سے کیا کہتے ہیں کہ یہ مہنگائی کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس میں، لیکن یہ حکومت کے لیے کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے وزراء کے سٹیٹمنٹس دیکھیں تو ان کو مہنگائی لگتی نہیں ہے، ان کے خیال میں مہنگائی ہے ہی نہیں، یہ یا میڈیا شور مچا رہی ہے یا وہ غریب لوگ جو اپنا رونا روتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ کب تک حل ہوگا اس حکومت کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا، بیکاز یہ جو غلط بات کرتے ہیں نا کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے، پوری دنیا میں مہنگائی یقیناً ان ممالک کے لیے ضرور زیادہ ہے جہاں پر گندم چینی یہ اجناس نہیں اگتی۔ ہم ایگریکلچر کنٹری ہے، ہم نے ہمیشہ گندم چینی یہاں سے باہر بھجوائی ہے۔ آج یہ کیا ہے کہ گندم چینی جو ہے یہاں اگنے کے باوجود باہر جاتی ہے اور باہر سے ہمیں گندی کالی گندم منگانی پڑتی ہے۔ تو یہ حکومت کی نااہلی، ناکامی اور جو کرپشن ہے۔ یہ جو ڈریس آپ نے پہنا ہوا ہے، یہ 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے اس کی کیا پرائس تھی اور اب کیا ہے؟ آپ کو کتنا فرق نظر آتا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ ڈریس میں نے خود بنوایا بھائی، یہ کوئی ڈیزائنر ڈریس نہیں ہے، یہ عظما ڈیزائننگ ہے۔ ہاں، اور میں بہت مہنگے کپڑے، یہ نہیں ہے کہ میں نہیں پہنتی، لیکن میں اس میں بلیو نہیں کرتی کہ آپ صرف مہنگے کپڑے پہن کے اچھے لگ سکتے ہیں۔ یہ ٹوٹل سوٹ آپ کہہ لیں کہ 4000 سے زیادہ کا نہیں ہوگا۔ تو یہ کب لیا تھا آپ نے؟ یہ میں نے لیا ہے کوئی 3 مہینے پہلے، اور یہ سل کے اب آیا۔ لیکن یہ ہے کہ بہت فرق پڑ گیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ خاص طور پہ جو کچن کا ہمارا خرچہ تھا، میں جو کچن کا خرچہ مجھے لگتا تھا کہ 60-70 ہزار روپے میں مینج کر لیا کرتی تھی، وہ اب نہیں ہو پاتا، وہ اب نہیں ہو پاتا۔ اور کی پرائس جو ہے، اب پیٹرول عیاشی نہیں ہے، پیٹرول آپ کی ضرورت ہے، مجبوری ہے، لیکن پیٹرول آپ کو 138 روپے جو ہے وہ خریدنا پڑتا، کیا کریں؟ کاسمیٹکس بہت مہنگے ہو۔ میں نے اچھا کیا تھا کہ میں ہمیشہ منگا کے رکھ لیتی ہوں پہلے سے۔ یہ میری بہنیں باہر رہتی ہیں بھائی، ان کی مہربانی ہے مجھے بھیج۔ ہم نے سٹاک کیا ہوا ہے میک اپ کا سامان کچھ کسی حد تک، لیکن اچھا ہوگا کہ یہ سوال میرا میک اپ دیکھنے کی اور اس کی بجائے اگر آپ حکمرانوں سے کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ کا تعلق جو ہے وہ حکومتی بینچز سے ہے، تو مہنگائی کا ہر طرف شور مچا ہوا ہے اور عام آدمی پریشان ہے، ہم سب پریشان ہیں۔ تو یہاں پہ ایوان میں بھی اس حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے مہنگائی کے حوالے سے؟ دیکھیں، آج تو ڈسکشن ہی مہنگائی پہ اور اس پہ ہے پرائس ہائٹ پہ۔ اصل میں مہنگائی جو ہے نا، یہ کوئی ایک آدھ دن کی بات نہیں ہوتی، اس کا پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور ہر 10 سال بعد ایک مہنگائی کا فریز آتا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل پرائس ہائک جب ہوتی ہیں، خاص طور پہ پیٹرولیم کی، اس سے تمام خورد و نوش کی اشیاء میں فرق پڑتا ہے۔ ہم اراکین اسمبلی کو ووٹ دے کے منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجتے ہیں اور وہاں جا کے وہ ہمیں ہی بھول جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں لوگوں کے انتخاب کا طریقہ کار کیا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کتنی بڑی گاڑی ہے، کتنا پیسہ خرچ کر سکتا ہے۔ جو لوگ سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوتے ہیں، ان کو عام لوگوں کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہم جیسے عام لوگ جب اسمبلیوں میں آتے ہیں تو وہ عام لوگوں کے مسائل کا، تکلیفوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو آئندہ اپنی ترجیحات کو بھی مد نظر رکھیں ووٹ دیتے ہوئے کہ کس کو دے رہے ہیں اور کیوں دے رہے ہیں۔ کچھ دیر پہلے عظما بخاری یہاں پہ آئی تھی، ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ جی میک اپ کا سامان بھی اب تو اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ وہ بھی افورڈیبل نہیں رہا، اور مجھے انہوں نے خاص طور سے کہا کہ یہ کسی آپ حکومت کی جو پی ٹی آئی کی جو رکن اسمبلی ہے نا، ان سے یہ سوال ضرور کیجیے گا۔ تو یہ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی کاسمیٹکس مہنگے ہو گئے؟
देखिए इम्पोर्टेड लोग लेते हैं उनके लिए हो गए होंगे. मैं तो मेड इन पाकिस्तान हर चीज इस्तेमाल करती हूँ. खुद पाकिस्तानी हूँ, मेरा दिल पाकिस्तानी है. मैं कपड़ा हर चीज पाकिस्तान का लेती हूँ, वो मुनासिब रेट है. रुकने असम्बली भी हैं, तो आप ये बताइएगा कि आप भी जाहिर है खरीदारी के लिए बाती होंगी, तो ये महंगाई इतनी है, तो इस महंगाई को जब आप बाजार में जाती हैं तो कैसा फील करती हैं कि महंगाई वाकई है या ऐसे ही शोर मचा हुआ है? बिल्कुल जी, एक खातून होने के नाते जाहिर बात है घर का बजट तो हमने ही मैनेज करना होता है. इवन दो हम वर्किंग वुमेन है, लेकिन हमारे भी एक महदूद जो होते हैं वसाइल, उसी के अंदर मैनेज करना है. आप यकीन माने ग्रोसरीज करने जाएं तो डबल हो गई हैं. ऑयल की प्राइस ले लें, आटे की प्राइस ले लें, चीनी की प्राइस ले लें, सब कुछ जो है ना वो मेरा ख्याल है कि ये खवातीन खास तौर पे के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह अपने वसाइल में रह के बजट मैनेज करें. नाजरीन, महंगाई का ये आलम है कि अब पंजाब असम्बली के जो मेंबरान हैं वो भी साइकिल करने के लिए ऐवान में मजबूर हो गए हैं. इस वक्त मेरे साथ अपोजिशन के एक मेंबर तारिक मसीह गिल साहब मौजूद हैं और वो साइकिल पर आए हैं, तो उनसे बात करते हैं. अच्छा गिल साहब, ये बताइएगा कि आमतौर पे एमपीएस से तो ये तवक्को की जाती है कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए और आप साइकिल पे आ गए. सर गाड़ियां हैं हमारे पास, गाड़ियां हैं, लेकिन उसके अंदर पेट्रोल ही नहीं होगा तो गाड़ी का धिक्का लगाएंगे. मेरी गाड़ी कल मैं यहाँ से अजलास से बाहर निकला बाहर चला तो असेंबली आगे पीछे में मार रोड से सीधा हमरा की तरफ चला. जब मैं चाह मिला कि सर मैंने मूव किया तो शिमला पहाड़ी प्रेस क्लब की पिछली साइड पे मेरी गाड़ी बंद हो गई. मैंने देखा तो गाड़ी का पेट्रोल नहीं था. मैंने कहा अब जाऊंगा पेट्रोल डलवाऊंगा, ये मेरे लिए नहीं है. अब भी मेरे पास सिर्फ 20-30 रुपए हैं. अब मेरा अकाउंट चेक कर ले, मैं इतना सही हूँ. तो मैंने कहा यार ये गाड़ी का पेट्रोल को छोड़ो, गाली मारो, हम गाड़ी पे जाते ही नहीं है. इससे सोचा गाड़ी पे जाएगा नहीं तो ये तक कुछ बात नहीं करेगा असेंबली के अंदर, अपनी कौम की, अपने लोगों की, अपने पाकिस्तान की बात नहीं करेगा. मैंने सोचा मैंने साइकिल ले ली. मैंने आज से किराए पे साइकिल ले लिया. ये साइकिल पे ये टिंडे, ये करेले, ये सब कुछ मैंने इसलिए डाला कि हमारे पास ये औकात भी नहीं है, हमारे पास ये बसात नहीं है कि हम ये सब्जियां खा सके. अच्छा, ये साइकिल जो आपने ये किराए पे ली है, अपनी नहीं है? किराए पे अपनी भी ले लूंगा भैया, अब तनहा मिलेगी उसमें से एक साइकिल लूंगा, अब गाड़ी नहीं लूंगा. और ये सब्जियां भी आपने गले में लटकाई हुई हैं, रोटी है. मैं बता रहा हूँ लोगों को, ये देखो ये बेंगा, ये ना ये शलजम है ना, खुदा की कसम ये मुझसे नहीं खाया जाता है. ये देखे, ये कच्चा शलजम खा जाऊंगा, इसलिए खा जाऊंगा, गुस्से में खा जाऊंगा. ये करेला खाने की औकात नहीं है. 380 रुपए किलो है यार. ये कद्दू जो है ना, ये कद्दू ये 180 रुपए किलो है. ये मैंने टमाटर पूछा, वो 100 रुपए तक पहुंच गया. क्या खाऊं यार, शुगर पेशेंट हूँ, ये कच्ची सब्जी खाऊं. अच्छा, बाकी जो ईवान के जो मेंबरान हैं उनको भी पैगाम ये आप देंगे कि वो भी साइकिल पे आए? लेकिन जी उनके पास अगर पेट्रोल के पैसे हैं तो वो गाड़ियों पे आए, मुझे कोई एतराज नहीं. जिसके पास नहीं है वो मेरे साथ साइकिल पे आ जाए. मैं तो साइकिल पे मैं इस्लामाबाद भी जाने के लिए तैयार हूँ, चाहे 1 माह के बाद पहुंचूं. पार्लियामेंट उसके सामने धरना दूंगा. वो धरना देता था अपनी हुकूमत के लिए, हम धरना देंगे अपने गरीब आवाम के लिए. जी गिल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की. आपने गिल साहब की बात सुनी. इनका ये कहना है कि महंगाई का ये आलम है, पेट्रोल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, सब्जियां महंगी हैं कि उनके पास अब कोई ये चारा नहीं रहा कि वो गाड़ी को छोड़ के और साइकिल पर आए ईवान में. और इनका ये भी कहना है कि ये साइकिल भी इनकी अपनी नहीं है बल्कि इन्होंने किराए पे हासिल की है. नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला अभी जारी है. यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा. प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम मजीद यहाँ पर एमपीएस मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं. वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मौजूद हैं, तो उनसे भी हम महंगाई के हवाले से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो होशरुबा महंगाई है इसको वो किस तरह से देखती हैं. जी मैडम, बताइएगा कि आपको लगता है कि महंगाई है? जी महंगाई है, इसके बारे में तो कोई शक नहीं है. हुकूमत उसको काउंटर करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की. जिस वक्त जिन लोगों को मसला बनता है फॉर एग्जाम्पल बीमारी का, तो उसके लिए आपको पता है हेल्थ कार्ड जो हैं ऑलरेडी जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं उन सबको हेल्थ कार्ड दे जा चुके हैं. और अब इंशाल्लाह 31 दिसंबर से पूरे पंजाब को हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं. एहसास कार्ड जो हैं उनकी भी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गई है. और इंशाल्लाह किसान कार्ड पर्टिकुलरली जो रूरल एरियाज के लोग हैं उनको भी हेल्प मिलेगी. ये महंगाई का हर तरफ शोर मचा हुआ है आजकल. अभी यहाँ पे नारेबाजी भी हुई ईवान के सामने, वो भी महंगाई के खिलाफ थी, हुकूमत के खिलाफ थी, और अवाम बड़े तंग आए हुए हैं. तो आप क्या समझते हैं कि ईवान के अंदर आप लोग अपने वोटर के हक में कोई आवाज़ उठा रहे हैं और मुअस्सर अंदाज में उठा रहे हैं? जी, आज का जो हमने इजलास रिक्वेजिशन किया है वो अपोजिशन ने इसीलिए किया है कि महंगाई की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है. मुमकिन नहीं है कि अगर आप एक ख़ास मुतवसत तबके के लोग
जो कि बड़ी तादाद है। पाकिस्तान के वो लोग जो एक मखसूस इनकम ग्रुप के नीचे हैं, जो कि लार्जली अगर आप देखें तो कोई 60-70% तक बनते हैं। अभी रिसेंट सर्वे में 2 करोड़ ख़ानदान मज़ीद गुर्बत की सतह से नीचे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ये कह रही है। तो कैसे मुमकिन है ये लोग जिंदा रहें? आज ये ज़रूरत है कि हुकूमत अपने वो इक़दामात कम अज़ कम जिनके साथ लोगों को कोई रिलीफ होता है उसे उनको इंश्योर करे, लेकिन गवर्नमेंट की तो स्पाइन ही नहीं लगती। आए दिन पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा, बिजली का बिल अब किसी की वो उसमें रह ही नहीं गया कि कैसे जमा करा सकते हैं, कौन दस्तरस में ही नहीं है। मतलब एक मुतवसत तबके का आदमी नहीं करा सकता, चाहिए कि हम गरीब आदमी की बात करें। इसी तरह से आप एशियाई खुर्द-ओ-नोश ले लें, बच्चों के स्कूलों की फीसें होश रबा है। मैं मान नहीं सकता कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन ना प्रोविजंस ऑफ बुक्स फ्री हैं, ना बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म्स हैं, उन पर हर आदमी परेशान है। कुछ हुकूमती वज़रा से भी बात हुई और उनके MPS से, वो तो कहते हैं ठीक है महंगाई है ज़रूर, मगर इतनी नहीं है जितना कि शोर मचाया हुआ है, और आने वाले दिनों में ये कम हो जाएगी। देखिए ना, ये इनसेंसिटिविटी की इंतहा है। इसे अगर मैं आपसे बिल्कुल प्लेन स्पीकिंग में कहूँ तो इससे ज़्यादा बेहिसी और क्या हो सकती है। मुझे इनमें से कोई साहब एक 20,000 रुपये एक बेसिक इनकम की बात है, घर का बजट बना के 5 अफराद के दिखा दे। आज दवाइयों की कीमतें देखें, होश रुबा। आज किसी जगह को अपने बच्चों के लिए कोई कपड़ा लत्ता लेने चले जाए, उसकी कीमत देखें, मुमकिन नहीं है। आप चूंकि रुकने असम्बली हैं, तो आप क्या समझती हैं कि इस महंगाई को किस तरह से एड्रेस करें? देखें, इसमें तो मुझे भी कोई वो नहीं है, दो राय ही नहीं है कि महंगाई नहीं हुई है। महंगाई तो वाकई बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन आप ये देखिए ना कि जो पेट्रोल की कीमतें वो तो इंटरनेशनल लेवल पे इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, तो नेचुरली उसका इफेक्ट हमें भी पड़ता है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, आटा, चीनी, दाल, इसके ऊपर ना प्राइस कंट्रोल कमेटीज जो है ना बिठाई जा रही हैं। यहाँ पर अवाम के वोट लेके आई हैं या जिस तरह से भी आई हैं, तो आप समझती हैं कि आपने महंगाई के खिलाफ कोई आवाज इस ऐवान में उठाई है? जी, पहले तो मैं ये कहूंगी कि मैं जिस तरह नहीं आई हूँ, मैं बहुत मेहनत कर आई हूँ और ग्रास रूट लेवल पे मेहनत करके आई हूँ। दूसरी बात है, जब मैंने ग्रास रूट लेवल पे काम किया हुआ है तो नेचुरली मुझे गरीब आवाम का तो बहुत पता होगा। अब हम लोग भी देखें, बार बार यही कह रहे हैं कि कम से कम आटा, चीनी, दालें तो कम हो, और उसी के लिए बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, कमेटीज बैठ रही हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द इन चीजों पे तो रिलीफ मिल जाएगा। सैफुल मुल्क खोखर साहब, आप रुकने असम्बली हैं, अपोजिशन से आपका ताल्लुक है, मुस्लिम लीग नून से है, तो आप ये बताइएगा कि ये महंगाई का एक जो सैलाब आया हुआ है, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में, आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? मुस्लिम लीग नून शुरू से ही आवाज बुलंद कर रही है और वाम को ये नवाज के साथ निकलना चाहिए था। जब वो वाम निकली है, लेकिन अवाम, पाकिस्तानी वाम तब इस महंगाई से जान छुड़ाएगी जब ये वाम कौम बने, बाहर निकले, एहतजाज करे और इसको निकाले। ये खुद ये जाने वाला नहीं है। आप यहाँ पर मुंतखब होके आए हैं अवाम के वोटों के साथ, यहाँ पे ईवान में आपने महंगाई के खिलाफ लोगों के मसाइल के हवाले से कितनी आवाज उठाई है और इससे मुतमिन हैं जो कुछ आप कर रहे हैं ईवान में? बात यह है कि आप जो पूछ रहे हैं कि लोग सब हम ये चाहते हैं कि इनसे छुटकारा हो, ये हम नहीं चाहते, ये अवाम चाहती है। जो पिस रहे हैं इस महंगाई में, इनकी नाअहली की वजह से जो इस मुल्क को पीछे धकेल दिया गया है, क्योंकि ये हमारे अवाम बेचारे जो इनको लेके आए थे वो भी पछता रहे हैं, जिन्होंने वोट दिए वो भी पछता रहे हैं। भी जाहिर है MPA तो हैं, लेकिन साथ साथ घरदारी भी करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो हालात इस मुल्क के हो गए हैं, इसमें तो हमारा मुल्क जो है, आपको पता है कि दुनिया में चौथे नंबर पे जो है महंगाई में जो है ये आ गया हुआ है। और अब माशाल्लाह से जो एक और खुशखबरी आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली, 7 रुपए जो है वो ओगरा ने कहा है कि जी बढ़ाएं, और वो 7 रुपए कह रहे हैं। और इमरान साहब, क्योंकि उन्होंने तो खुद पेट्रोल डलवाना नहीं है, तो वो 15-20 रुपए कर देंगे। तो और उससे जो होगा, आप समझ लें कि हर चीज पे इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, हर चीज महंगी हो जाएगी। लोगों से पूछो, डाके, चोरियां, दिन दिहाड़े, किडनैपिंग, सब कुछ हो रहा है बिकॉज सब भूख से मर रहे हैं लोग,
और कोई चारा नहीं आता तो उन्होंने ये काम शुरू कर लिया है। ये हमारी हुकूमती वज़रा से भी बात हुई है तो उनका तो ये कहना है कि महंगाई ठीक है लेकिन इतनी नहीं है जितना शोर मचा हुआ है। तो ठीक है ना, वो तो अमीर लोग होंगे जो कहते हैं इतनी नहीं है। गरीब से पूछो, ये तो अमीर की बात है। 110 गुना और कर लो तो वो तो कहेंगे महंगाई नहीं है। वो तो पैसे वाले लोग हैं। उससे पूछो जिसका रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, कुछ नहीं है उसके जेब में। आप भी ग्रोसरी करने जाती होंगी, शॉपिंग करने जाती होंगी, तो आप क्या देखती हैं कि कितनी महंगाई है? महंगाई तो आपको देखें कि ये जो महंगाई करने के लिए तो बहाना ही चाहिए ना। अब देखें कि ये जो पेट्रोल की कीमत है और यकदम इन्होंने जो 10 रुपए बढ़ाया है, मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कि जितना कीमत यकदम बढ़ा रहे हैं उससे कितनी महंगाई होगी। एक दफा जो महंगाई होगा, पेट्रोल का रेट कम भी हो गया तो महंगाई तो अपनी जगह रुकी रहेगी। अब ये गवर्नमेंट की क्योंकि जिम्मेदारी है महंगाई को कंट्रोल करना, ताजरान के साथ, मैन्युफैक्चरर्स के साथ नेगोशिएशन करनी। मतलब ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव का तो ये फायदा होता है कि उनके साथ बातचीत करें, बातचीत के जरिए जो है प्राइसेस को कंट्रोल करें, कम करें। लेकिन मैंने महसूस किया है कि ये जो इस वक्त हुकूमत है, इनके अंदर एक नेगोशिएशन स्किल की कमी है और डिक्टेटरशिप चल रही है। तो जब तक ये अवामी नुमाइंदा बनकर जिस तरीके से महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए उस तरीके से नहीं करेंगे तो महंगाई कंट्रोल। नाजरीन, महंगाई जैसे अहम मसले पर आपने अराकीन पंजाब असम्बली की गुफ्तगू सुनी। इनकी गुफ्तगू से बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि इन्होंने 3 साल ऐसे ही गुजार दिए और कोई महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से, महंगाई के इशू को हाईलाइट करने के हवाले से और इसके हल करने के हवाले से कोई संजीदा इक़दामात इन्होंने नहीं उठाए। अब 2 साल बाकी हैं। अब इन 2 सालों में ये क्या कर पाते हैं? क्या महंगाई के हवाले से कुछ ऐसे इक़दामात करेंगे या नहीं कि जिससे आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके? ये तो हम आने वाले दिनों में ही देखेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपने मेजबान सईद बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।